Difference between primary and permanent teeth. Difference between primary and permanent teeth. Primary teeth, as we know, these are the first teeth to erupt into the oral cavity. It consists of 20 teeth. They are referred as deciduous teeth. They lost as the permanent teeth erupt. जैसे जैसे परमानेंट टीथ आते रहते हैं, प्राइमरी टीथ लॉस्ट हो जाते हैं. प्रीमोलर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्राइमरी डेंटिशन में या डेसिडुअस डेंटिशन में. प्राइमरी डेंटिशन को ही डेसिडुअस डेंटिशन बोलते हैं एंड इसमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं. लाइक अपर टीथ में हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर होंगे, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर. थर्ड मोलर एब्सेंट होता है और प्रीमोलर्स भी एब्सेंट होते हैं. ऐसे ही हमारे लोअर टीथ होंगे. देन परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ आर द सेकंड सेट ऑफ टीथ फॉर्म्ड इन डाइप्योडोंट मैमल्स. ये पहले प्राइमरी टीथ के बाद जब आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ. ह्यूमंस में 32 टीथ होते हैं, 16 इन ईच आर्च. मतलब ऊपर वाले अपर जो को बोलते हैं मैक्सिलरी आर्च, लोअर जो हो गया मैंडिबुलर आर्च. मैक्सिलरी आर्च में भी 16, मैंडिबुलर आर्च में भी 16. ओके, तो 16 इन ईच आर्च. लाइक 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, 3 molars in each quadrant. Now we divide the arch into 2 parts. Okay, and each part is called quadrant, and each quadrant have 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. Premolars are absent in primary dentition, and now here in permanent dentition premolars are present. Okay, see this diagram. We have central incisor at the number 9, then lateral incisor, canine, first premolar, second premolar, first molar, second molar, third molar. This left side, upper left side, has 8 teeth. This is quadrant, and like this we have 4 quadrants. Like this. We have 4 quadrant. Okay, now difference between primary and permanent teeth. Primary teeth are 20 in number, permanent teeth are 32 in number, as we know. Then eruption. Eruption means वो कब इरप्ट हुए, कब वो हमारी ओरल कैविटी में आने शुरू हुए. प्राइमरी टीथ इरप्ट हुए हमारे 6 मंथ, जब कोई बेबी 6 मंथ का था तब वो आने शुरू हुए, और ये 2.5 to 3 ईयर्स ऑफ एज तक रहते हैं. टोटल सारे इस एज तक आ जाते हैं. देन परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ का इरप्शन होता है एट द 6 ईयर्स ऑफ एज. जब एक चाइल्ड 6 ईयर का होता है तब परमानेंट टीथ आने इरप्ट होते हैं, और कंप्लीट होता है एट द एज ऑफ 18 to 21. जब हमारा लास्ट मोलर, थर्ड मोलर इरप्ट होता है एट द एज ऑफ 18 to 21 ईयर्स, तब इसका इरप्शन कंप्लीट होता है. Now dental formula for the primary teeth. Dental formula is like ICPM. I incisor, C मतलब canine, P premolar, M molar. मतलब हमारे पास 2 incisor है, एक canine है, 0 premolar and 2 molar. Then the formula comes out like 2102 upon 2102. Then permanent teeth dental formula is like 2123 upon 2123. 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molars. As we know, this difference is primary has no premolars, but the permanent dentition has premolars. Now comes to the size.
Primary teeth are smaller in size, permanent teeth are larger in size. Means primary teeth का crown small होगा, permanent teeth का crown large होगा. Now crowns are wider mesiodistally than cervicoincisally. Mesiodistally wider होगा than cervicoincisally. Means this is mesiodistal side, and this is cervicoincisally. तो प्राइमरी में मीजियोइंसाइजली इस तरीके से विड्थ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू उसकी लेंथ, दैट इज cervicoincisally. ओके. एंड परमानेंट डेंटिशन में उल्टा होगा, cervicoincisally हाइट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू मीजियोडिस्टल विड्थ. नाउ कलर की बात करें, प्राइमरी टीथ का कलर लाइट कलर होगा, दे आर लाइक मिल्की वाइट, बिल्कुल दूध की तरह वाइट होंगे. बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क इज सेम एज दैट ऑफ प्राइमरी टीथ. प्राइमरी टीथ का और मिल्क का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, इसीलिए वो मिल्की वाइट कलर के लगते हैं. बट द परमानेंट टीथ आर डार्कर कलर लाइक येलोइश वाइट, येलोइश कलर के होंगे. नाउ अदर डिफरेंस in primary, in palatal और lingual surface cingulum is more prominent. cingulum जो होगा वो ज़्यादा prominent होता है, लेकिन permanent teeth में cingulum prominent नहीं होता. Like this, here cingulum is seen more prominent, ज़्यादा उठा हुआ दिख रहा है, बहुत prominent दिख रहा है, लेकिन permanent में इतना ज़्यादा prominent नहीं होता. प्राइमरी में प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा सिंगुलम, लेकिन परमानेंट में प्रोमिनेंट नहीं होगा. देन हैव स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया एंड परमानेंट हैव लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया. प्राइमरी में कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल होगा, परमानेंट में कॉन्टैक्ट एरिया लार्ज होगा. अदर डिफरेंस, कॉन्टैक्ट एरिया इसका जिंजाइवली प्लेस्ड होगा, इसका कॉन्टैक्ट एरिया मिडिल थर्ड में होगा या फिर जंक्शन ऑफ मिडिल एंड इंसाइजल थर्ड पे होगा. तो परमानेंट हैव लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया प्लेस्ड either in the middle third or at the junction of middle and incisal third, but in the primary have small contact area placed more gingivally. See this diagram. Primary have small contact area and placed more gingivally towards the cervical line, but in the permanent there is the large contact area and present at the junction of middle and incisal third. Now cervical constriction. Primary teeth is more constricted at the cervical position of the crown. Cervical position पर ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगा, बट परमानेंट में लेस कंस्ट्रिक्शन होगा. लेट मी शो. Like this. This is constriction at the cervical portion. cervical portion की तरफ ज़्यादा constricted होगा, बट इसमें इतना ज़्यादा constriction नहीं होगा. ओके. Now cervical ridge. Cervical ridge in the primary teeth are more pronounced. cervical ridge हमें ज़्यादा बड़ी दिखेगी, बट परमानेंट टीथ में, परमानेंट डेंटिशन में cervical ridge जो होगी वो लेस प्रोनाउंस्ड होगी.
What is ridge? Ridge is a linear elevation, and linear elevation in the cervical position is called cervical ridge. So cervical ridge means linear elevation in the cervical position is more pronounced in the primary dentition, but it is less pronounced in the permanent dentition. See this diagram. सर्वाइकल रिज जो हमें दिख रही है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड दिख रही है, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है प्राइमरी में, बट लेस प्रोमिनेंट हमें इसमें दिख रही है परमानेंट में. नाउ प्लेसमेंट इन द जॉज. प्राइमरी टीथ परपेंडिकुलर होंगे, परमानेंट टीथ थोड़े से ऑब्लिक होंगे. रूट की बात करते हैं. प्राइमरी में लार्जर रूट होती है, मोर स्लेंडर होती है, लेकिन परमानेंट में शॉर्टर रूट होती है और बल्कियर होती है, थोड़ी बल्की रूट होती है और शॉर्ट होती है. नाउ रूट फॉर्मेशन. रूट कब फॉर्म होगी इन द प्राइमरी डेंटिशन? द रूट्स आर फुल्ली फॉर्म्ड आफ्टर 1 year ऑफ इरप्शन ऑफ पार्टिकुलर टीथ. टूथ के बनने के 1 साल बाद, क्राउन के बनने के 1 साल बाद रूट बनती है, फुली फॉर्म हो जाती है. लेकिन परमानेंट में अराउंड 3 years लगते हैं रूट को बनने में. तो प्राइमरी में 1 साल लगा, परमानेंट में 3 साल लगे रूट को कम्प्लीटली फॉर्म होने में. Now we see the difference, tooth-wise differences. Firstly, what is mamelon? Mamelon is any one of the 3 rounded protuberance founded on the incisal ridge of newly erupted incisor teeth. कोई भी नया जब इंसाइजर टीथ इरप्ट होता है तो उसकी इंसाइजर रिज के पास कुछ राउंडेड प्रोटूबरेंस आते हैं, उसको बोलते हैं मेमेलोन्स. लेट मी शो यू द डायग्राम. लाइक दिस इज़ अ न्यूली erupted इंसाइजर, एंड इसमें इंसाइजर रिज के पास, दिस इज़ द इंसाइजर रिज, और इसके पास ये इस तरीके से राउंडेड प्रोटूबरेंस है. दिस राउंडेड पोर्शन, दिस राउंडेड प्रोटूबरेंस आर मेमेलोन्स, एंड ये धीरे धीरे एज द wear and tear these mamelons get destroyed, ये धीरे धीरे wear and tear के साथ ख़त्म होने लग जाते हैं. ओके, सो प्राइमरी में मेमेलोन्स एब्सेंट होते हैं. मेमेलोन्स आर एब्सेंट इन द प्राइमरी टीथ, बट मेमेलोन्स आर प्रेजेंट इन द permanent teeth only in the incisors, newly erupted incisor. Now compare with the primary and permanent. Primary teeth mamelons are absent, permanent teeth mamelons are present, mamelons are seen in the newly erupted permanent teeth. Now same thing as we have discussed earlier. प्राइमरी इंसाइजर्स आर वाइडर मीजियोडिस्टली, ये मीजियोडिस्टली वाइडर होंगे. ये लेंथ वाइज परमानेंट वाले जो होंगे वो लेंथ वाइज मीन्स सर्वाइको इंसाइजली लॉन्गर होंगे. लेट सी द डायग्राम लाइक दिस. प्राइमरी वाले मीजियोडिस्टली वाइडर होते हैं, और परमानेंट डेंटिशन में जो इंसाइजर होगा, परमानेंट इंसाइजर जो होगा वो सर्वाइको इंसाइजली वाइडर होगा, उसकी हाइट ज़्यादा होगी. सर्वाइको इंसाइजली वाइडर होता है परमानेंट. नाउ सी द डिफरेंसेस इन कैनाइन्स इन प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. कैनाइन में जो कैनाइन का क्राउन होता है वो मोर कॉनिकल इन शेप होता है प्राइमरी में. प्राइमरी कैनाइन इज मोर कॉनिकल इन शेप एज कंपेयर टू परमानेंट. परमानेंट इज लेस कॉनिकल. प्राइमरी कैनाइन मोर कॉनिकल है तो उसकी कस्प टिप भी पॉइंटेड होगी, शार्प होगी. लेकिन परमानेंट कॉनिकल कम है तो उसकी कस्प टिप भी लेस पॉइंटेड होगी. सो प्राइमरी कैनाइन आर मोर कॉनिकल in shape, cusp tip is more pointed, more sharp, but in the permanent it is less conical and less pointed cusp tips. See the difference.
It is more conical, more pointed cusp tip. It is less conical, so less pointed cusp tip. इसकी more pointed, more sharp है, इसकी less pointed. ये permanent है, ये primary है. Now premolars. It has no premolar, it has 4 premolar, as we have no. Now molars. Primary have 2 molar in each quadrant. पता ही हमें 2 molar होते हैं, इसमें 3 molar होते हैं. It has 2 molars. Permanent have 3 molar in each quadrant. In the primary dentition, molar are more bulkier, bell shaped होते हैं with marked cervical constriction. Molars of primary dentition have more cervical constriction. more cervical constriction होता है तो इनकी शेप बेल जैसे लगती है. इट इज़ लाइक बेल शेप्ड, जैसे कि बेल हो. और मोर बल्कियर भी होता है, लेकिन परमानेंट में कंस्ट्रिक्शन कम होता है. नाउ ऑक्लूजल टेबल. ऑक्लूजल टेबल मीन्स जब हम अपने मोलर को, प्राइमरी मोलर को या परमानेंट मोलर को ऑक्लूजल साइड से देख रहे हैं, ऑक्लूजल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो उस ऑक्लूजल एस्पेक्ट को जो हम देख रहे हैं, तो जो हमें टीथ दिख रही है उसको बोलेंगे ऑक्लूजल टेबल. तो प्राइमरी में ऑक्लूजल टेबल नैरो होगी, छोटी होगी. परमानेंट में ऑक्लूजल टेबल बड़ी होगी. इट हैज़ नैरो ऑक्लूजल टेबल एंड परमानेंट है ब्रॉड ऑक्लूजल टेबल. नाउ प्राइमरी में क्राउन ऑफ सेकेंड मोलर इज लार्जर देन द क्राउन ऑफ फर्स्ट मोलर. सेकेंड मोलर का क्राउन बड़ा दिखता है. और परमानेंट में क्या होता है, फर्स्ट मोलर का क्राउन बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड मोलर. परमानेंट में 3 मोलर होते हैं, 1, 2 एंड 3. और सबसे बड़ा साइज जो होता है वो फर्स्ट मोलर का होता है. फर्स्ट मोलर साइज इज लार्जर देन द क्राउन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मोलर. नाउ सी, प्राइमरी की ऑक्लूजल टेबल जो है वो नैरो में छोटी दिख रही है, लेकिन परमानेंट की बहुत ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑक्लूजल टेबल दिख रही है. सप्लीमेंटल ग्रूव्स. प्राइमरी में ज़्यादा सप्लीमेंटल ग्रूव्स होंगे, बहुत ज़्यादा हमें ग्रूव्स दिखेंगे, लेकिन परमानेंट में बहुत कम ग्रूव्स दिखते हैं. तो प्राइमरी हैव मोर सप्लीमेंटल ग्रूव्स, परमानेंट हैव लेस सप्लीमेंटल ग्रूव्स. सी इन द डायग्राम, प्राइमरी में कितने सारे हमें ग्रूव्स दिख रहे हैं. सी, प्राइमरी में कितने सारे ग्रूव्स दिखे, लेकिन परमानेंट में बहुत कम ग्रूव्स दिखे, लेस सप्लीमेंट्री ग्रूव्स. नाउ कस्प. कस्प क्या होता है, cusp is an elevation or mound on the crown portion of the tooth, making up the divisional part of the occlusal surface. occlusal surface को divide कर देता है कस्प. कस्प एक बहुत ज़्यादा एलिवेशन पार्ट होता है, राउंडेड एलिवेशन, एक मोटा सा राउंडेड एलिवेशन पार्ट होता है ऑक्लूजल सरफेस पे, जो कि उस सरफेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं कस्प. तो कस्प जो होगा प्राइमरी टीथ में वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कस्प होते हैं. प्राइमरी में ज़्यादा बड़े बड़े कस्प नहीं दिखते, छोटे छोटे से, शॉर्ट, लेकिन शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंटेड होते हैं. तो कस्प आर शॉर्ट, शार्प, पॉइंटेड इन द डेसिडुअस मोलर. लेकिन परमानेंट की बात करें, परमानेंट के कस्प इतने शार्प नहीं होते, राउंडेड कस्प होते हैं, राउंडेड. तो कस्प आर लेस शार्प होते हैं, और बड़े बड़े कस्प होते हैं और शार्प कम होते हैं. सी इन द डायग्राम, प्राइमरी में हमें शार्प कस्प दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन परमानेंट में थोड़े से ब्लंट कस्प दिख रहे हैं. शार्प नहीं है परमानेंट में, परमानेंट में ब्लंट कस्प है. नाउ अब हमें पता है कि प्राइमरी में छोटे छोटे कस्प हैं, शॉर्ट फोसा हैं, रिजेस भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, कम कम दिखती हैं, फोसा भी लेस प्रोमिनेंट है, कस्प भी छोटे छोटे हैं. इसीलिए इसकी ऑक्लूजल सरफेस जो है बहुत ज़्यादा शैलो दिखता है, लेकिन
परमानेंट में हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है डीप ओक्लूसल सरफेस हो, बहुत गहराई हो। क्यों? क्योंकि इसके कस्प भी बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फोसा भी बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और रिजेस भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो ड्यू टू कस्प आर लॉन्ग, fossa and ridges are more prominent. The occlusal surface is deeper in permanent dentition. But in primary dentition, since the cusps are short and fossa and ridges are less prominent, they have shallow occlusal surface in primary. Okay. नाउ सर्वाइकल लाइन लेस कर्व होती है, बट परमानेंट में बहुत ज़्यादा कर्व हमें दिखता है। मोर कर्व्ड सर्वाइकल लाइन, बहुत ज़्यादा कर्व दिखता है हमें। दिस इज सर्वाइकल लाइन, दिस इज सर्वाइकल लाइन। ओके। परमानेंट में लेस कर्वेचर दिखता है, माइल्ड कर्वेचर दिखता है, लेकिन इसमें हमें बहुत अच्छा खासा कर्वेचर दिखता है परमानेंट में। ओके। नाउ हम नॉर्मल बातें हैं कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के बारे में बताएंगे। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में 3 कस्प होते हैं, इट हैज़ 3 कस्प, बट परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है 4 फंक्शनल कस्प एंड 1 एसेसरी कस्प, तो 4 + 1 5 कस्प। नाउ मैक्सिलरी सेकेंड मोलर प्राइमरी है 4 फंक्शनल एंड 1 एसेसरी कस्प, but in the permanent it has 4 cusps. Now mandibular first molar in primary dentition it has 4 cusps, in permanent dentition it has 5 cusps. In mandibular second molar primary have 5 cusps, permanent have 4 cusps. Now come to the root of primary dentition and permanent dentition. As we know, root of primary teeth is larger. It has larger root, more slender. प्राइमरी हैव लार्जर रूट, लार्ज रूट होगी, मोर सिलेंडर रूट होगी, लार्ज होगी, स्लेंडर होगी। लेकिन परमानेंट में हमें पता ही है शॉर्ट रूट होती है, बल्कियर होती है, बहुत ज़्यादा बल्की, मोटी सी रूट होती है, बहुत ज़्यादा बल्की होती है, मोटी रूट होती है और शॉर्ट होती है। प्राइमरी में लार्ज होती है, स्लेंडर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज रूट आर नैरो मीजियो डिस्टली। इसमें रूट नैरो होती है मीजियो डिस्टली, इस तरीके से मीजियो डिस्टली नैरो होगी, लेकिन इसमें हमें रूट जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड दिखेगी। इसमें मीजियो डिस्टली छोटी दिखेगी, इसमें मीजियो डिस्टली ब्रॉडर रूट दिखेगी। रूट ट्रंक इज स्मॉलर, इसमें रूट ट्रंक छोटा होगा एंड परमानेंट में रूट ट्रंक लार्जर होगा। See the root trunk. Root trunk in primary is smaller. This is root trunk. This is root trunk. Primary में root trunk small दिखा, but in the permanent root trunk is larger. इसमें हमें root trunk इस एरिया छोटी सी जगह को बोला root trunk, और ये इसमें छोटा है, इसमें larger है। root trunk इसमें छोटा है, इसमें root trunk is large. Next difference, furcation of molar रूट इज़ प्लेस्ड मोर सर्वाइकली। फर्केशन मीन्स जहाँ पर हमारी रूट डिवाइड हुई, तो इसमें जो प्राइमरी में रूट डिवाइड हो रही है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पोजीशन के पास जाके डिवाइड हुई, लेकिन इसमें थोड़ी सी एपाइकली डिवाइड हो रही है। सो इन द प्राइमरी में कैसे होती है, प्राइमरी में फर्केशन ऑफ मोलर रूट इज़ प्लेस्ड मोर सर्वाइकली। प्राइमरी में जो रूट डिवाइड हो रही है, प्राइमरी में जो रूट डिवाइड हो रही है वो सर्वाइकल पोजीशन के बिल्कुल पास डिवाइड हो रही है, इसलिए उसकी रूट ट्रंक भी स्मॉल है। लेकिन परमानेंट में क्या होता है, जो हमारा फर्केशन है वो मोर एपाइकली मतलब इतनी थोड़ा सा नीचे एपाइकल एरिया की तरफ है, इसीलिए इसकी हमें रूट भी, इसकी जो रूट ट्रंक है वो भी ब्रॉडर दिखती है। इट हैज़ ब्रॉडर रूट ट्रंक एंड फर्केशन ऑफ मोलर इज प्लेस्ड मोर एपाइकली। लेकिन प्राइमरी में मोर सर्वाइकली होता है, इसलिए इसकी रूट ट्रंक भी स्मॉलर दिखती है। नेक्स्ट डिफरेंस, रूट फ्लेयर आउट
आउटवर्ड्स, रूट जो है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ फ्लेयर हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन परमानेंट में रूट फ्लेयरिंग इज एब्सेंट, कोई रूट फ्लेयरिंग नहीं हो रही, नॉर्मल तरीके से रूट से इसमें फ्लेयर हो रही है। परमानेंट में नॉर्मल तरीके से कोई फ्लेयरिंग नहीं हो रही। Thank you so much. Like my video, like my all videos, subscribe my channel and share my all videos. Thank you.